Good afternoon, everyone. Welcome to JL Prayojan classes. We are here to learn English, not general day-to-day life English, but to achieve something. We are here to learn English for our PGT exam. In the last class, we have discussed the poem Easter 1916 by W.B. Yeats. In today's class, we will go through one of Yeats' another poem, that is The Second Coming. I think you all must be aware of this poem. भाई मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के सिलेबस में ये जरूर रहा होगा द सेकेंड कमिंग, क्योंकि भारत की बहुत यूनिवर्सिटी इसे फॉलो करती है. मोर देन 50% यूनिवर्सिटीज द सेकेंड कमिंग को पढ़ाती हैं, यूजी में, पीजी में. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव रेड, और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आज करेंगे द सेकेंड कमिंग. देखिए, आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई डब्बा के भीतर कोई सामान होता है तो कई बार डब्बे से जज करने का लोग प्रयास करते हैं, हम लोग खुद, हम हर कोई. सो द नेम सेकेंड कमिंग इज समथिंग रिवील्स इन इट सेल्फ. यह नाम ही अपने आप में कुछ रिवील करता है. द सेकेंड कमिंग मतलब किसी का दोबारा आना, पहली बार नहीं. जैसे हम लोग इंडिया में, जो भारतीय हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हम लोग इसमें पुनर्जन्म की बात करते हैं. उसी तरह द सेकेंड कमिंग इज समथिंग लाइक दैट. मैंने पहले भी बताया, जो W.B. ईट्स थे, ये कई बार ये बाइबल में विश्वास रखते थे, और कई बार जीसस क्राइस्ट और बिब्लिकल फिगर्स को लेके इन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे हैं. So the second coming was written in 1919 and it was published in 1920 in the Dial. तो आप 1919 से समझ सकते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड जस्ट एंडेड. वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था. उसके बाद की चीज़ों को लेकर, उसके बाद की दुनिया को लेकर ईट्स लिखते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति थी, या उस समय जो 1919 का सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था. और ईट्स आयरिश पोएट थे, आयरलैंड में क्या चल रहा था, यूरोप में क्या चल रहा था, उन सब चीज़ों को लेकर इनके मन में जो चिंता थी उसे लेकर इन्होंने लिखा है. ठीक है, देखिए वो जो दौर था, इट वाज एन एरा ऑफ चेंज. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एट इट्स पेस. New inventions, technologies were taking place. So the world was changing, and an outcome of which the writer was afraid of something. So he wrote his feelings, his emotions in the form of the second coming. Here the title, the second coming, it conveys the meaning of the rebirth of Jesus Christ. देखिए, जैसे हमारे वहाँ भारत में भगवान होते हैं, तो उनके तरह हमारी तरह वहाँ पे भी, यूरोप में भी वो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और लगभग 2000 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. तो वो रीबर्थ की सोचते हैं. दे थिंक ऑफ द रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. Let us have some points here. Let us look at this. The second coming is narrated by a speaker who is observing the world around him with horror. The poem begins with the phrase turning and turning in the widening gyre. These are the beginning lines of the poem. Turning and turning in the widening gyre. A sentence that evokes an occult symbol that perpetually fascinated William Butler Yeats. भाई उनके दिमाग में कुछ ऐसा था जिससे ही वॉज टू मच फैसिनेटेड. ठीक है, इंटरलॉक्ड सर्कल्स, अ जायर इज ए स्पाइरल और वॉर्टेक्स. स्पाइरल समझते हैं ना, जैसे आप लोग किताब कॉपी को भी स्पाइरल बाइंडिंग करवाते होंगे, तो गोल 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 ऐसे घूमना, वो स्पाइरल होता है. तो जायर इज समथिंग लाइक अ स्पाइरल, एंड ईट्स बिलीव्ड that the universe was comprised of interlocked circles. He believed that this world is something which is made up of interlocked circles, which together make up
individual life that collates to form the whole of existence. Essentially, this first line is just a complex way of saying that something is happening in this world and something is churning and awakening. Some new existence is rising out of the current haze of life that we all live in, expanding it and enlarging the scope of what life is and altering how the world works on a fundamental level. The whole first section finds the speaker observing a world that is that is losing touch with order and morality. Violence is destroying innocence. People have become detached from their leaders. Something fundamental is dissolving, and people who believe in goodness are being silenced, while the loudest speakers are the villains and chaos bringers. इसमें मतलब एक जो इसका सारांश की तरह मैं कहूँगा वो मैंने एक ड्रॉ किया है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भाई जो 1919 या 1900 के बाद का जो दौर था उस समय क्या था पूरे वर्ल्ड में. आप देखिए वर्ल्ड वॉर हो गया. वर्ल्ड वॉर इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज अ वेरी ड्रास्टिक थिंग फॉर द होल ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड वॉर आपने देखिए जापान में अमेरिका ने जब न्यूक्लियर वेपन्स गिराए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, तो कितनी त्रासदी हुई, आज तक उसकी भरपाई जापान नहीं कर पाया. तो वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. उसके बाद ब्रिटेन ने भी पूरे वर्ल्ड में कई जगह अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी. तो इससे क्या था कि एक ह्यूमैनिटी का दौर खत्म हो गया था. लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, खून की नदियां बह रही थी, कुछ अपने आप को डिफेंड करने में, कुछ अपनी सत्ता स्थापित करने में. तो पूरे वर्ल्ड में एक उथल पुथल सा मच गया था और अच्छे लोगों की कमी हो गई थी, और जो सबसे बदमाश लोग थे वही सबसे तेज बोलने लगे थे. ये कहना चाहते, तेज बोलने का कि मतलब उन्हीं की सुनी जा रही थी, वही ऐसा कर रहे थे. फिर द सेकेंड सेक्शन बिगिन विद द लाइन श्योरली सम रिवीलेशन इज एट हैंड. उसमें कहते हैं भाई कुछ तो रिवील होने वाला है. देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रिवील्ड. कुछ खुलासा होने वाला है. रिवील कर क्या होता है? खुलासा होना. Finds the speaker sure that some major shift is happening around him. All this chaos cannot be an accident. Certainly something vast is coming. Some distorted version of the Christian apocalypse is descending upon the land. Some ending is approaching. देखिए मैंने आपको बताया कि भाई वो बाइबल में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन बिलीफ में बिलीव करते हैं, तो वो कहते हैं भाई कि कुछ ऐसा है जो क्रिश्चियन बिलीफ से वो खत्म होते जा रहे हैं. लोग क्रिश्चियन बिलीफ से हट रहे हैं, अर्थात एविल की ओर जा रहे हैं. गुडनेस से एविलनेस की ओर लोग बढ़ रहे हैं. The third section describes the speaker's vision for what this second coming, this new world redefined by all the violence and chaos that occurred in the past, might look like. He thinks about the Spiritus Mundi, which is a Latin term meaning world spirit. ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो स्पिरिट्स हैं उनके लिए Spiritus Mundi, and begins to visualize images within this world spirit, including desert, sphinxes and shadowy birds. स्फिंक्स वो एक क्रिएचर की बात करते हैं कि इस पोएम में, वो अभी मैं आपको आगे जब पोएम हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में करेंगे. By the end of the poem, the speaker is sure that something even worse is coming. Some nightmare, some rough beast is rising, approaching the earth at a rapid pace. He doesn't know what this creature is, but he can sense its approach, and it is the ominous core of the second coming, that mysterious tide of evil and mystery approaching the world in the form of a modernity full of violence, war, and the loss of traditional meaning and values. Here are some glossaries of the second coming. जैसे एक जो word है gyre, which are the major words. We can have a look at this. Gyre, it is a spiral, a vortex, or a series of overlapping circles. Falconer, the controller of the master of falcon. देखिए फाल्कनर से पहले हम लोग को फाल्कन पढ़ना. फाल्कन क्या होता है? बाज, जो एक जो खूंखार पक्षी माना जाता है, जो मांस भक्षी होता है. वो आप देखे होंगे ना आकाश में बाज को उड़ते हुए, वो. एंड फाल्कनर वन हु कंट्रोल्स द फाल्कन. देखिए इसके दो मीनिंग है. बाज, एक तो फाल्कन का लिटरल मीनिंग बाज है, बट यहाँ पोम में फाल्कन ये ह्यूमन बींग्स को बताया गया है. एंड फाल्कनर जो बाज का मास्टर होता है, यहाँ पे गॉड इज द फाल्कनर एंड ही इज द मास्टर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स.
अनार्की, अनार्की का अर्थ क्या होता है? कुछ समथिंग डिसऑर्डर, कुछ ऐसा है कि जो लॉलेसनेस, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, लोग अपने पथ से भटक गए, पथभ्रष्ट होना, ऐसा ये अनार्की होता है। फिर डिम्ड मतलब क्लाउडेड, डार्क एंड, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस, अश्योर्डनेस, वास्ट, स्पिरिचुअल मंडी, पिटीलेस मतलब जो एकदम निर्दयी हो गया हो, ठीक है, एकदम निर्दयी हो जाना, मतलब इविलनेस की ओर बढ़ जाना, ये होता है पिटीलेस। रील, स्पिन, टर्न, इंडिग्नेंट, शोइंग एंगर और एनोवेंस। स्लाउचेज, मूव इन अ ड्रूपी, लेजी, स्लो फैशन, ऑफन रेफर्स टू बैड पोस्चर और एंड स्लो सफलिंग मोशंस। स्लाउचेज का ऐसा अर्थ होता है मतलब धीरे धीरे चलना, ठीक है, और मतलब एक वो धीरे धीरे जो चाल है वो एक निगेटिव चाल होगी, ठीक है, वो एक निगेटिव, पॉजिटिव। एक होता है कि भाई गज भी धीरे धीरे चलता है अपना मस्त मगन होकर, वो नहीं, वो एक पॉजिटिव चाल होती है। कई बार इंसान भी धीरे चलते हैं अच्छे तरह, एक सकारात्मक पहल की तरह, पॉजिटिव दृष्टिकोण से, बट हियर इट इज इन अ नेगेटिव वे। एंड बेथलेम, बेथलेम ये इट इज अ सिटी वेयर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ठीक है। नाउ कम टू द पोएम द सेकंड कमिंग बाय W.B. Yeats, William Butler Yeats. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold. देखिए, टर्निंग एंड टर्निंग मतलब घूम रहा है, समथिंग इट इज टर्निंग। वैसे एक बार हम इधर टर्न हुए, फिर इधर टर्न हुए, तो टर्न का अर्थ आप ऐसे लिटरली भी देखेंगे तो कुछ ऐसा है जो घूम रहा है। तो यहां पे क्या, एक रैपिड स्पिनिंग की बात हो रही है, एक रैपिड रोटेशन की बात हो रही है। इन द वाइडनिंग जायर, वाइडनिंग जायर का क्या अर्थ है बताइए? वाइडनिंग जायर मतलब जो इस गगन में, ठीक है, इस एक खुले आसमान में, द फाल्कन कैन नॉट द हियर द फाल्कनर, मतलब जो फाल्कन है, जो बाज है, वो बार बार गोते लगा रहा है, स्पिन हो रहा है, कहां, और उस स्पिनिंग की वजह से, जो बार बार स्पिनिंग हो रही है उसकी वजह से उसका जो रेशियो है, उसका जो दायरा है वो और बड़ा होता चला जा रहा है। जायर इज वाइडनिंग, वो दायरा उसका बड़ा होता चला जा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द सेंटर कैनॉट होल्ड। देखिए यहां पे द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर, अर्थात कि जो बाज है वो अपने मास्टर को नहीं सुन रहा है, और थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड, और चीजें बर्बाद होती चली जा रही है बट सेंटर का होल्ड खत्म होता जा रहा है। ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। बट विलियम बटलर ईट्स यहां कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ये जो सृष्टि है, ये संसार है, इट इज स्पिनिंग, ठीक है, और इसका जो इसकी जो गति है, इसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। बट द फाल्कन अर्थात द ह्यूमंस हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर पाथ। देखिए ह्यूमन का काम है भाई, इंसान है, इंसानियत करो, इंसानियत से चलो, अच्छे कर्म करो, लेकिन ईट्स कह रहे हैं कि वो अपने पथ से भटक गए हैं, वो अपने मास्टर अर्थात गॉड की नहीं सुन रहे हैं, वो जीसस क्राइस्ट की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का होल्ड उनके ऊपर से खत्म होता जा रहा है। Where anarchy is loosed upon the world, the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Here, William Butler Yeats is trying to say that mere anarchy is loosed upon the world, means जो अनार्की है, जो डिसऑर्डर है, जो लॉलेसनेस है, ये पूरे वर्ल्ड में व्याप्त होता जा रहा है। लोग सही कर्म नहीं कर रहे हैं, लोग गलत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, एक लॉलेसनेस सा हो गया है। द ब्लड डिम टाइड मतलब भाई खून की लहरें या लहरों में खून का आना, ठीक है।
एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। मतलब जो पहले हम लोग खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, जो सेरेमनीज होती थी, वो सारे खत्म हो गए, वो डूब गए इस बाढ़ में। किस बाढ़ में? खून की बाढ़ में, खून की लहरों की लपटों में वो आ गए। देखिए उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर हैज जस्ट एंडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे कई कंट्रीज में, तो हर जगह खून की नदियां बह रही थी। चाहे वर्ल्ड वॉर के बाद लाखों लोगों की जानें गई, फ्रीडम स्ट्रगल्स में लोगों की जानें जा रही थी, तो हर तरफ बस हत्याएं हो रही थी, देयर वर किलिंग्स ऑल अराउंड। तो जो भाई किसी के घर अगर किसी की मृत्यु होगी, हत्या होगी, तो क्या उसके घर कभी कुछ खुशियां मनाई जाएगी? अगर किसी के घर मातम होगा तो कभी खुशियां तो नहीं मनाई जा सकती। तो यही चल रहा था उस समय। द बेस्ट लैक ऑल conviction while the worst are full of passionate intensity। देखिए द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, मतलब जो कन्विक्शन का जो बिलीफ, ठीक है, जो एक फेथ था वो खत्म होता जा रहा था। ठीक है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, जो अच्छे व्यक्ति थे उनका जो फेथ था वो खत्म होता जा रहा था, क्योंकि अच्छाई तो हो नहीं रही थी, बस गलत होता जा रहा था, गड़बड़ होता चला जा रहा था। तो this was lacking while the worst are full of passionate intensity and the bad, the evil one, here the worst is meaning the evil one, the bad one, they are working with full intensity and full passionately। मतलब वो अपने गलत कामों को अंजाम देने के लिए बहुत ही उग्र रूप से काम कर रहे थे, वेरी पैशनेटली, बहुत जज्बे के साथ काम कर रहे थे। एंड द गुड वन वॉज नॉट वर्किंग, दे वर लैकिंग द फेथ, and the bad one were at their pace। Come to the second stanza, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand, surely some revelation is at hand। revelation अर्थात there is something to which is going to be revealed, कुछ तो ऐसा है जो रिवील होने जा रहा है। ठीक है, वो अपने हाथ में है। देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रिवील्ड। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज, द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड एंड द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडी ट्रबल्स माई साइट। फिर वो कहते हैं कि भाई द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। वो कहते हैं कि भाई जीसस क्राइस्ट का जो सेकेंड कमिंग है वो भी हाथ में है, वो भी होना संभव है। भाई वो महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा ना, एक वो श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा और दुष्टों की संख्या बढ़ेगी तो भाई मैं जन्म लूँगा, मैं अवतरित होऊंगा, मैं आऊँगा और सबका विनाश करूँगा, विनाश करने के लिए ही मेरी उत्पत्ति होगी। उसी तरह यहाँ पर भी वही होता है कि भाई जीसस क्राइस्ट के सेकंड कमिंग की बात होती है। When a vast image out of the spiritus mundi, spiritus mundi मैंने बताया अभी, इट इज अ लैटिन टर्म जिसके कहते हैं वर्ल्ड स्पिरिट, अर्थात कि एक ऐसी जगह जहाँ पे विश्व की सभी आत्माओं का आपको समागम हो जाए और आप उनसे अपने दिमाग को अटैच कर सके। ठीक है, ट्रबल्स माई साइट, कहते हैं कि भाई मेरी नज़रों के सामने कुछ ट्रबल क्रिएट करता है, मेरी आंखों के सामने कुछ गड़बड़ सा उत्पन्न हो जा रहा है। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट, जो डिजर्ट के जो रेगिस्तान है उनके बालुओं में कहीं पे, अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, एक ऐसा क्रीचर मुझे दिखाई देता है जिसका जो शरीर है वो शेर की तरह है और पर उसका जो मुख है वो इंसान की तरह है। जैसे हमारे वहाँ नरसिंह भगवान थे, वो उनका जो मुख था वो सिंह का था और बाकी शरीर उनका नीचे का भाग सिंह के नर की तरह था। लेकिन यहाँ पे है ये उल्टा है, ये निगेटिव सेंस में भी इस क्रीचर की बात हो रही है और उसका जो मुख है वो
इंसान की तरह है और उसका जो बाकी शरीर है वो एक शेर की तरह है। A gaze blank and pitiless as the sun, कहते हैं कि भाई उनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य की तरह है, लेकिन पिटीलेस है। पिटीलेस है अर्थात वो एक निर्दयी की तरह दिख रहा है, अर्थात देयर इज समथिंग इविलनेस इन हिज आईज। वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। सूर्य की तरह आंखें चमक रही है, पूरी ब्लैंक है, लेकिन वो बहुत ही एकदम निर्दयी फील हो रहा है। is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds। कहते हैं कि भाई वो अपनी धीरे धीरे चल रहा है, moving its slow thighs while all about it real shadows of indignant desert birds। और वो जब चल रहा है तो उसके ऊपर से जो नरभक्षी पक्षी होते हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द उनकी परछाई पड़ रही है। द शैडोज, द रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। जो डेजर्ट बर्ड्स होते हैं वह जो मांस पे जिंदा रहते हैं, जो बड़े बाज जैसे खतरनाक पक्षी होते हैं, वल्चर, ऐसे उनकी परछाई उसके इर्द गिर्द चल रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born। कहते हैं कि the darkness drops again, मुझे फिर से वो डार्कनेस दिखाई देता है, ठीक है, वो फिर से नजरों के सामने आता है। But now I know that 20 centuries of stony sleep, that 20 centuries of stony sleep कहते हैं मतलब जो मनुष्य है वो 20 शताब्दियों से, 20 सेंचुरीज से चैन की सांस ले रहा है। अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद मनुष्य चैन की सांस ले रहा है, जो शांति से स्टोनी स्लीप ले रहा है। मतलब घोड़े बेच के सोना जो कहावत है ना, वैसा। मतलब मनुष्य निर्भीक है कि भाई चलो भगवान है, जीसस क्राइस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अब टूटने वाला है, ठीक है। वेयर वेक्स टू नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रैडल, वो टूटने वाला है। वेक्स्ड का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। और एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर्स कम राउंड एट लास्ट। और ये जो बीस्ट की बात वो जो करते हैं, जो बीस्ट है जिसका शरीर शेर की तरह है और मुंह जो है इंसान की तरह है, उसके बारे में कहते हैं इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लोचेड टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, कि वो धीरे धीरे चलता है और क्या वो बेथलेहम की तरफ जा रहा है। ये एक सपना देखते हैं, ठीक है, इनके एक इमेज क्रिएट होता है। बेथलेहम वाज व्हाट प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। मतलब ये एक कहते हैं कि भाई अब अच्छाई पे बुराई हावी हो रही है, ऐसा जमाना आ गया है, सब तरफ वॉर है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, लोग एक दूसरे को ही गुलाम बना, इंसान ही इंसान को गुलाम बनाने में लगा हुआ है। वो ऐसा सोचते हैं कि क्या अच्छाई खत्म होती जा रही है। उनके मन में एक डर होता है, ही इज अफ्रेड ऑफ समथिंग, दैट द इविल इज कैप्चरिंग द गुड वन। सो दिस इज द पोम द सेकेंड कमिंग। Now let us have some themes of the poem. Violence is one of the most major theme of the poem. जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर की बात होती है, जो थीम इसका है कि भाई चारों तरफ खून की नदी। आपने ये अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा द ब्लड डिम्ड टाइड, कि भाई खून के वेव, जो टाइड है वो ब्लड डिम्ड है, खून से लथपथ है। तो वायलेंस कहीं ना कहीं इसका ये है। देखिए वर्ल्ड वॉर उस समय एंड हुआ था और लगभग 16 मिलियन पीपल वर किल्ड इन अ हॉरिफाइंग डिस्प्ले ऑफ द पावर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर एंड ऑफ द कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट्स दैट रैक द सपोज्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो मेनली ये वर्ल्ड वॉर को जो है वो ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। फिर देखिए एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का भी इसमें है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, आप इसे देखिएगा। फिर प्रोफेसी, the second coming is a deeply ominous poem full of foreshadowing like
mythical Greek oracles of old, delivering prophecies in the form of fragmented predictions of the future. It is full of grandiose, dramatic premonitions that do not necessarily make the future much clearer. All it is sure of is that something is going to happen and the world will never be the same. फिर साइक्लिकलिटी, जैसे आप फर्स्ट लाइन ही हम लोगों ने जो पढ़ा, फर्स्ट लाइन में था टर्निंग एंड टर्निंग, तो इससे भी आप देख सकते हैं साइक्लिकलिटी का इसमें वो हो रहा है, ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ए थीम, भाई जीसस क्राइस्ट की बात होती है, उनके सेकंड कमिंग की बात होती है, तो ये एक है। फिर मीनिंगलेसनेस है, द सेकंड कमिंग इज अबाउट द लॉस एंड चेंज एंड अबाउट द ट्रेडिशनल मीनिंग, भाई जो ट्रेडिशनल लॉसेस हो रही हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। नाउ सम सिंबल्स, एलेगरी एंड मोटिव्स। द वाइडनिंग जायर, इट इज अ सिंबल. Gyre is actually a scientific term used to refer to a vortex located over the air or sea, and it is usually refers to system of circulating ocean currents. In its second coming, gyre is used to represent the swirling, turning landscape of life itself. The falcon मैंने पहले बताया, जो बाज है वो एक सिंबल की तरह हुआ है, ठीक है। और the falconer, it is also a symbol, it is representing the god. The blood dimmed tide, it is also a symbol, ठीक है, overwhelming violence and uncontrollable chaos. The sphinx वही उस क्रीचर की बात हो रही है कि जो भाई अच्छाई के ऊपर हावी होता जा रहा है। Some literary elements that are used, it is speaker or narrator point of view, ठीक है, और it is the poem is written in the first person, और स्पीकर यहाँ पे मतलब ऐसा किसी का नाम मेंशन नहीं करता, बट ओनली मेंशन हिमसेल्फ वंस, ठीक है। और इट इज रिटन इन वेरी लूज आयम्बिक पेंटामीटर, और ये फ्री वर्स में कई प्लेसेस में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाल्कन और फाल्कनर जो क्या है, मेटाफोर्स हैं ये, ठीक है, ह्यूमैनिटी और कंट्रोलिंग प्रिवेलिंग फोर्स, दैट इज गॉड, और ब्लड डिम टाइड इज ऑल्सो ए मेटाफोर। द रफ बीस्ट इज ऑल्सो ए मेटाफर, क्योंकि भाई उसे रफ बीस्ट कहा गया, तो भाई इट इज अ मिस्टीरियस रैपिडली अप्रोचिंग, ठीक है। फिर कुछ एलिट्रेशंस, एजोनेंस है, जैसे टर्निंग एंड टर्निंग, ये सारी है, ठीक है, ये एक आप देख सकते हैं। फिर लूज्ड इज ऑल्सो रिपीटेड है, ये दो वर्ड है। फिर श्योरली दो बार अब रिपीट हुआ है सेकेंड स्टैंजा में। फिर द सेकेंड कमिंग इज ऑल्सो रिपीटेड। फिर फाल्कनर है, ये रिपीटेड है। इसमें आयरनी का भी यूज है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि भाई जो अच्छा है, जो अच्छाई करता है, वो उसका विश्वास समाप्त होता जा रहा है, ही इज लैकिंग हिज फेथ। और जो बदमाश है, इविल है, ही इज मूविंग एट इट्स पेस, वो फुल पैशनेटली, फुल इंटेंसिटी के साथ चल रहा है। The widening gyre, all of existence, dream-like desert. So these are all the there are some allusions also. The Spiritus Mundi, it is also used as an allusion, and there are personification. The apocalypse or collapse of the order is personified as rough beast, and also hyperbole is used. The phrase surely that the second coming is at hand, it is a bit of exaggeration, even though the world was in turmoil when Yeats was writing this poem, saying that surely a biblical scale and apocalypse is approaching without a fraction of doubt is an example of hyperbole. Thank you, and that's all for the second coming. I hope you all must have understood the poem. The second coming. Actually, it is a biblical type of poem, so I think you all must have learned this. और अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हैं, जो भी गड़बड़ियाँ होंगी, जो भी डाउट्स होंगे उसे भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।